Good morning, students. Myself, Samir V. Tejwani. I welcome you all on behalf of Aradhya classes. Now onwards, I will be taking your chemistry subject for standard 11th, 12th, board, GUJCAT as well as JEE and NEET. I will be starting the content with the help of chapter number 5, which is surface chemistry. I have prepared the content of surface chemistry in some animated way that will help you to understand the concept in very better way. So we are starting our content with the help of chapter number 5, which is surface chemistry. So before I start the actual contents of surface chemistry, let us have some animated pictures so that we can understand that why this chapter is important. Next. Let us see certain phenomena. Here you can see that water droplet is deposited on the surface of leaf. In second example, you can see that tissue paper is absorbing the water, is soaking the water. Next please. Here you can see that there is large problem of fog formation in our metro and developed cities. In coffee you can see that foam is coming. So once you study this chapter, you will be able to understand why these phenomena are happening. Let us see. So surface chemistry, it deals with the phenomenon which is happening at the interface of two phases. Now what do we mean by interface of two phases? Let us understand. This is my interface. Here I am taking some solid or liquid material, and here let us take, we are taking gas. So this boundary which let us represent with the help of different color marker. So this boundary is representing the interface to you. That means it is a separation boundary between these two bulk phases. We are going to study the reactions which are happening on this interface. This bulk phases that we are going to study in surface chemistry will be two. They will be either pure compounds और सॉल्यूशंस. माइंड इट, ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है. जो बल्क फेसेस की हम बात करेंगे वो या तो प्योर कंपाउंड्स होंगे. बल्क फेसेस मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो जो ये बल्क फेसेस की हम बात करेंगे वो प्योर कंपाउंड्स या तो सॉल्यूशंस होंगे. नेक्स्ट प्लीज. इंटरफेस जो है उसके अंदर क्यों थोड़े मॉलिक्यूल्स का थिकनेस रहेगा. अभी मैंने आप लोगों को इंटरफेस बताया था कि ये जो रेड कलर का बाउंड्री है, दिस रेड बाउंड्री इज योर इंटरफेस. दिस रेड कलर इंटरफेस विल बी few molecules thick, like there will be presence of only few molecules, and the surface area of this interface will be dependent upon the particle size of the material present over here. The surface area will be dependent upon the particle size. Lower the particle size, higher will be the surface area. Let us understand with the help of one example. If I am giving you one wooden block and at the same time I am giving you the powder, and if you are burning both of them, who will burn easily? So very easily you can say that powder will burn easily. Why? Because surface area in case of powder is very large. So smaller the particle size, larger will be the surface area. चलो देखते हैं आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया. आई एम ड्रॉपिंग वन क्वेश्चन टू यू. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अटेन द आंसर. आई विल गिव 4 ऑप्शंस टू दिस. ओके, अंडरस्टैंड. Surface chemistry deals with the phenomenon that occurs at, what could be the probable answer? Think. I will give you 5 seconds. Yes, you are correct. The surface chemistry is dealing with the interface of the two phases. Let us see. Yes, the answer is correct. Let us go on the principal topic of this chapter, which is adsorption. बच्चा लोग फर्स्ट वर्ड के ऊपर खास समझना, इट इज एडसॉर्प्शन. यहां पर मैंने डी लिखा है. इफ आई एम मेकिंग और इफ आई एम रिप्लेसिंग दिस डी विद बी, एंटायर फिनोमिनन विल चेंज. We are currently focused on this word D, adsorption. Next please.
Let us see some phenomena in order to understand what is adsorption. So can you believe the surface of solids have the tendency to attract and retain some molecules? Like if I am taking in chapter number 2 solutions, you already have studied that if solid platinum metal or palladium metal is taken over here, and if hydrogen is passed at pressure, you will experience that hydrogen gas gets adsorbed on the surface of solid. What does that mean? This solid surface has the tendency to attract and retain the gaseous molecules which are hydrogen here. So here we are going to study some examples in which we can clarify this fact. Next please. Let us understand what do we mean by adsorption. तो याद रखो, adsorption is accumulation or concentration of molecular species at the surface. Now what do we mean by molecular species? It can be hydrogen, it can be oxygen, it can be nitrogen, whatever the gases can be. They will be adsorbed on the surface, not in the bulk. So whenever molecular species are adsorbed on the surface rather than bulk, the phenomenon is known as adsorption. Dilli wala D. Next please. Let us understand animation के मदद से कि why this adsorption is taking place. Here this is your solid surface. You can see that on the surface there are holes. Now what will happen? Adsorbent is coming. So you can see this adsorbent is getting adsorbed on the surface. It is not penetrating into the bulk. So this phenomenon is adsorption. Let us clarify some terms. Here you can see that adsorption is taking place. So the molecular species, the yellow one, or the substance which concentrates on this surface is known as adsorbate. So this is your adsorbate. Why? Because these molecules are getting adsorbed on the surface of solid. So they will be termed as adsorbate. They will be termed as adsorbate. Next. So this is your adsorbate. Now question comes, अगर आपने इसको adsorbate बोला तो what will this? It is adsorbent. See, the surface on which adsorption is taking place is adsorbent. So our yellow surface is adsorbent. याद रखो बच्चा लोग, ये जो सरफेस है ये वाली, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट. उसी की ही सरफेस के ऊपर ये गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा है, इसलिए इसको बोला एडजॉर्बेट. दिस इज एडजॉर्बेट एंड दिस इज एडजॉर्बेंट. तो बच्चा लोग बोलो पूरी प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली द प्रोसेस इज दैट ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है, हमें दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट. जो एडजॉर्ब होता है सरफेस के ऊपर दैट इज एडजॉर्बेट, और जिसकी सरफेस के ऊपर ये प्रोसेस होती है दैट इज एडजॉर्बेंट. चलो अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं एडजॉर्बेंट के. फर्स्ट एग्जांपल इज चारकोल. हैव यू सीन द चारकोल? नो. लेट अस सी. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज योर सरफेस ऑफ चारकोल. चारकोल मतलब कोयला. ठीक है. नेक्स्ट, सिलिका जेल. हैव यू सीन दैट? लेट अस सी. दिस इज सिलिका जेल. You must have observed this silica gel in the water bottles whenever you are purchasing a new water bottle. That you will be having a packet in which instructions are written that please do not eat this. Such kind of materials are known as silica gel. Function of silica gel is to absorb the moisture. वो क्या करती है? वाटर बॉटल के अंदर जो एयर है उसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है. तो दो एब्जॉर्बेंट हो गए, चारकोल, सिलिका जेल. नेक्स्ट है एल्यूमिना जेल. ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर इसको पढ़ा हुआ है स्टेशनरी फेज के फॉर्म में. नेक्स्ट प्लीज. क्ले. क्ले का सिंपल मीनिंग है मिट्टी. दिस इज ऑल्सो क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज metals in their finely divided state. So you can see that these metals are in crushed form, finely divided form. So they are also acting as good adsorbents. फटाफट देख लो कि कौन कौन से adsorbents पढ़े. ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है. फर्स्ट इज चारकोल, सेकेंड इज सिलिका जेल, थर्ड इज एल्यूमिना जेल, देन क्ले. metals in their finely divided state are all examples of adsorbent. Next please. I am throwing some questions in order to find out how much concept has been clear to you. The first question is,
accumulation of molecular species at the surface of solid or liquid. Think, I'm giving you 5 seconds. Here are the options. So what would be the answer? Since we have been asked that at the surface of a solid, the answer should be A, adsorption. Okay, why? Because molecules are adsorbed at the surface. Next please. Second question, examples of adsorbent. याद करो बच्चा लोग, adsorbent के एग्जाम्पल कौन कौन से देखे हमने? चारकोल, yes. सिलिका जेल, yes. Alumina gel, yes. So all three are examples of adsorbent. So we will write the answer as all of this. Clear है? चलो done. Next. Now let us see how in our day-to-day life adsorption is taking place. Let us see few more examples. Next please. Example number 1. The example number 1 states that whenever gases like oxygen, hydrogen, carbon monoxide, chlorine, ammonia or SO2 is taken in the closed vessel in which there is already powdered charcoal, what will happen? The pressure of the gas will decrease. Again, हम कोई closed vessel ले रहे हैं, उसके अंदर पहले से ही चारकोल भरा हुआ है, and now we are adding hydrogen and oxygen and such kinds of gases in that. So what we will observe? We will observe that pressure of the gas decreases. Let us see this with the help of animation in order to have the clear idea. So this is your closed vessel. Okay. In closed vessel there was no pressure, whatever air was there was sucked out. So zero pressure is there, and we are adding charcoal to this. This is your charcoal. Now what we will be doing, we will be placing hydrogen gas in this vessel. So obviously the pressure of the vessel will increase. हम हाइड्रोजन गैस इसके अंदर पुट अप करेंगे तो क्या होगा? वेसल के अंदर एयर का प्रेशर जो है या गैस का प्रेशर जो है वो इंप्रूव होगा. चलो देखते हैं. यू कैन सी कि हमने हाइड्रोजन गैस को पुट कर दिया है, प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज हुआ. बच्चे लोग थोड़ी देर के बाद क्या होगा? कुछ हाइड्रोजन गैस इस चारकोल की सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो जाएगा, डी. चलो देखते हैं क्या होता है. देखो यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो चारकोल की सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो गया. समझ में आया? इसीलिए क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का जो पहले का प्रेशर था वो कम हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर ड्रॉप हो गए ना. आपने ये वाला इक्वेशन पढ़ा हुआ है, PV इज इक्वल टू nRT. इसमें ये वाला टर्म देखो, प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स. So you can see that moles of the gas are decreasing because of adsorption at charcoal, and hence the pressure inside the vessel decreases. Clear हुआ? The pressure inside the vessel decreases. चलो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर आया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक डाई के सॉल्यूशन के अंदर, अब पहला ही क्वेश्चन आएगा, सर ऑर्गेनिक डाई क्या है वो बता दो. तो देखो ऑर्गेनिक डाई एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को कलर करने में हेल्प होता है. जैसे हम लोग जीन्स पैंट पहनते हैं वो ब्लू कलर का होता है. उस ब्लू कलर को इंपार्ट करने के लिए हम जो ऑर्गेनिक केमिकल्स उसके अंदर ऐड करते हैं, दे आर योर ऑर्गेनिक डाइस. बहुत सिंपल एग्जांपल दूं तो इट इज उजाला सुप्रीम. आप लोगों ने देखा होगा, जो गड़ी हम यूज करते हैं वो. ठीक है. तो अगर ऐसे ऑर्गेनिक डाई के सॉल्यूशंस के अंदर सपोज करो कि हमने डाई के फॉर्म में लिया है मिथिलीन ब्लू. अगर आपने इसके अंदर चारकोल ऐड कर दिया और सॉल्यूशन को अच्छे से शेक कर दिया, ऐसा देखा गया है कि जो फिल्ट्रेट है वो कलरलेस हो जाएगा. चलो देखते हैं कैसे. ये आपने ले लिया मिथिलीन ब्लू. देखिए ब्लू कलर ही मैंने लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए. अब मैं इसके अंदर चारकोल ऐड करूंगा. चारकोल जो है वो एडसॉर्बेंट है, वो इसके अंदर गया. देखा, नोटिस किया, कलर ऑफ द सॉल्यूशन चला गया, ब्लू में से कलरलेस हो गया. क्यों? क्योंकि जो डाई था वो अब किसके ऊपर चला गया है? चारकोल के ऊपर. सो दिस डाई मॉलिक्यूल्स हैव एब्सॉर्ब्ड this charcoal has adsorbed the organic dye molecules which were present in the solution. Clear हुआ सब लोगों को? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो रॉ शुगर का सॉल्यूशन है वो येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का.
उसके अंदर से कलर को रिमूव करना हो तो आप क्या करोगे, उसको चारकोल के बेड पर से पास करोगे, एनिमल चारकोल के बेड पर से। अब क्वेश्चन आएगा सर एनिमल चारकोल का बेड मतलब क्या, तो आप एनिमल चारकोल की एक लंबी लेयर को बना दोगे इस तरीके से, ठीक है। दिस इज योर एनिमल चारकोल। यहां पर मैंने ले लिया है एनिमल चारकोल। अब मैं क्या करूंगा, इस एनिमल चारकोल की सरफेस के ऊपर से ये एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ शुगर जो है वो पास करूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से जो शुगर आएगा मुझे वो कलरलेस आएगा, ठीक है, दैट इज कलरलेस वाइट, जिसको हम प्रोसेस्ड शुगर भी बोलते हैं। यहां पर वो येलो कलर का था, देखा होगा जैगरी गुड़ येलो कलर का होता है लेकिन शुगर व्हाइट कलर का होता है। व्हाई? बिकॉज शुगर के अंदर ये वाला प्रोसेसिंग किया होता है। तो जब भी एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ शुगर को एनिमल चारकोल से पास किया जाता है तब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है या शुगर जो है वो कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। फोर्थ एग्जांपल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि अगर कोई एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसको मॉइस्चर फ्री बनाने के लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। यहां पर सिलिका जेल क्या करेगा, तो सिलिका जेल जो है वो एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कहने का मतलब एयर जो है वो मॉइस्चर फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ा उसके पहले मैं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट जो है वो रिवाइज करा लेता हूं। हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन में क्या देखा, तो हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन में देखा कि गैस जो है वो सरफेस के ऊपर अक्यूमुलेट हो जाता है। सपोज ये आपकी सरफेस है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा फिगर ड्रॉ कर देता हूं। सपोज कि ये आपकी सरफेस है, बराबर, ये कुछ भी हो सकती है, लिक्विड या तो सॉलिड। अब इस सरफेस के ऊपर अगर गैस इस तरीके से कॉन्संट्रेट हो जाए, अगर कॉन्संट्रेट या अक्यूमुलेट हो जाए तो इसको हमने बोला था एड्सॉर्प्शन, बोला था ना। डिफाइन करते हैं, द अक्यूमुलेशन ऑफ gas molecules on the surface of solid or liquid is known as adsorption, या accumulation of adsorbate on the surface of adsorbent is known as adsorption। तो सोचो इसका रिवर्स प्रोसीजर क्या होगा। इसके रिवर्स प्रोसीजर को बच्चा लोग हम लोग डिसॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। डिसॉर्प्शन में क्या होता है, यहां पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो उस सरफेस के ऊपर से डिटैच हो जाते हैं। तो सिस्टमैटिकली डिफाइन कैसे करेंगे इसको, द प्रोसेस इन विच गैस मॉलिक्यूल्स गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन। तो समझ में आया बच्चा लोग, एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसीजर है, याद रखो इस चीज को। एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसीजर है। अगर एड्सॉर्प्शन में गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होता है, अक्यूमुलेट होता है, तो डिसॉर्प्शन में गैस मॉलिक्यूल डिटैच होता है सरफेस पर से। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। कुछ क्वेश्चंस थ्रो कर रहा हूं आपकी तरफ, पे अटेंशन। क्वेश्चन पढ़ लो। व्हाट शुड बी द आंसर? ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा कि गैसेस को अगर क्लोज्ड वेसल में लिया जाएगा तो उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। ये जो डिक्रीज इन द प्रेशर है वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चे लोग, तो वो एडसॉर्प्शन की वजह से हो रहा है। द आंसर शुड बी बी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। देखो इस वर्ड के ऊपर ध्यान दो, रिमूविंग एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस। तो यहां पर एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस जो है वो रिमूव हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग, डिसॉर्प्शन। क्लियर हुआ? चलो डन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, और वो खत्म हो जाए उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन? तो आप लोग बोलोगे सर इसमें डी है, एक मिनट, इसमें डी है और इसमें बी है। नो, इतना सिंपल डिफरेंस नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। चलो समझते हैं। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जो कॉन्संट्रेटेड सब्सटेंस है वो है सरफेस के ऊपर,
वो कहां पर डिपॉजिट होता है? ओनली एंड ओनली सरफेस के ऊपर, वो बल्क में नहीं जाता है। एडजॉर्प्शन में जो सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे लिमिटेड होता है और वो बल्क के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है। इस चीज को हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन, दिल्ली वाला डी। और नेक्स्ट लॉजिक ये आएगा कि सर अगर पेनिट्रेट हो रहा हो तो सरफेस के ऊपर भी है और बल्क के अंदर भी पेनिट्रेट हो रहा हो तो बच्चा लोग इसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर है, और एब्जॉर्प्शन में वो सरफेस के ऊपर तो है ही और साथ साथ में बल्क में भी जा रहा है। कहने का मतलब कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट प्लीज। चलो एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा। यहां पर मैं चौक ले रहा हूं, प्लीज एक मिनट। चौक ले रहा हूं और इस चौक को मैं इंक के अंदर डिप कर रहा हूं। चौक को मैं इंक के अंदर डिप कर रहा हूं तो क्या होगा? नेक्स्ट। तो थोड़ी देर के बाद मुझे देखने को मिलेगा कि चौक के ऊपर भी ब्लू कलर आ जाता है। समझना बच्चा लोग, इस चौक के ऊपर ब्लू कलर आ जाता है। तो ब्लू कलर सरफेस के ऊपर दिख रहा है, दैट इज एडजॉर्प्शन, डी। और अगर इंक जो है वो अंदर गई है, इस इंक का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस चौक के अंदर गया है, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्लीज। तो सरफेस ऑफ द चौक जो है वो एड्सॉर्प्शन की वजह से इंक को रिटेन करती है, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट प्लीज, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो अंदर एब्जॉर्प्शन की वजह से जाता है। क्लियर हुआ? आई होप अभी तक का कंटेंट आपको बहुत क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं है कुछ भी चीज तो आराध्या क्लासेस के एडमिन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।